Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to grade 9 chemistry class. Today, the topic which will remain under discussion is role of intermolecular forces in different state of matter, and second topic is typical properties of liquid. Here you can see. This topic is mentioned in your chapter number 5, Physical State of Matter, on pages 84, 85 and 86. Today we are going to discuss two typical properties of liquids. First one, evaporation, and the second one is vapor pressure. First topic of the day is role of intermolecular forces in different state of matter. So we will first discuss role of intermolecular forces first. Intermolecular forces. Along with different state of matter in which these forces are present. Now, as we know that matter exists in three physical states. How many states of matter are? Three states of matter: solid, liquid, and gas. Solid, liquid, and gases are three states of matter. And first of all, we are going to find out that what will be the role of intermolecular forces in gases. So in the gaseous state, first of all, number one, in gaseous state. This will be your next heading, in gaseous state. Exactly, in the gaseous state, the molecules are far apart from each other. Therefore, their intermolecular forces are very weak in them. But in the liquid and solid state, intermolecular forces play a very important role on their properties. So here in the case of in gaseous state, first of all, suppose this is the gaseous state of any gas, and in which different gas molecules are present, but these are present far apart from each other. They are not close to each other. So these are four different gas molecules which are present in this gaseous state. What are you observing in this picture? Actually, this figure indicates that the gas molecules have a lot of empty spaces among them. These are the empty spaces. So their intermolecular forces, which are actually binding these two molecules together, are very far as well. Why? Because these molecules are not close to each other. They are very far apart. So their intermolecular force is very weak. Now, in the similar manner, if we'll talk about the next, that is next state, and it is this liquid state. So in liquid state, what is the role of that is intermolecular force? So in liquid state, in case of liquid states, molecules are much closer to each other as compared to the gases, as you have seen here. So suppose this is the liquid state and the molecules are present in such a manner that they have some spaces among them, but they are not closed. So these are some of the liquid molecules. So what are you observing in the liquid state? That these rounded structures are the molecules. They are somewhat close to each other. They are much closer to each other, but not as far as part in the gaseous state. गैशियस स्टेट में आप क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर फासले पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान की जो इंटरेक्शन है, जो इन दो मॉलिक्यूल्स को या इन सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रही है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो इंतहाई वीक है. वीक होने की वजह क्या है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में फासला बहुत ज़्यादा है. इन लिक्विड स्टेट आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में तो हैं, लेकिन साथ साथ इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो गैसेस के मुकाबले में आप कह सकते हैं कि वीक नहीं है. क्यों वीक नहीं है? क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस जो हैं वो अब कम हो गई हैं. यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर जो है वो स्पेस कम हो गई है. जहाँ मैं शेडिंग जाहिर कर रही हूँ ये स्पेस हैं.
अब इतने कम फासले से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा ये कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा सा करीब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वीक हैं, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। बट इन केस ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन सॉलिड स्टेट की, तो व्हाट हैपेंस इन द सॉलिड स्टेट विद द intermolecular forces. In solid state, what you will observe that intermolecular forces become so dominant in this state that the molecules look motionless. Mean कैसी state है यहाँ पर? सपोज ये लिक्विड स्टेट आपको शो कर रहे हैं, इसमें हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे और सॉलिड मॉलिक्यूल्स किस तरीके से आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज है, यानी इनके दरमियान कोई आपको फासला भी नज़र नहीं आएगा, इवन एन इंच और सेंटीमीटर का फासला भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, इनके दरमियान कोई फासला नहीं है और लिहाजा इनकी मूवमेंट भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये अपनी जगह से वाइब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि यहाँ आपको जगह नज़र आ रही है कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह रैंडमली मूव कर सकते हैं, लिहाजा ये अपनी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन पर काबू पा लेते हैं, उनको कमज़ोर कर देते हैं और एक मॉलिक्यूल दूसरे से बाइंड नहीं हो सकता। लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं है। लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा ये कि सॉलिड के मुकाबले में कम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, लेकिन यहाँ सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो एसोसिएशन है या ताल्लुक़ है या बाइंडिंग है वो इतनी मजबूत है जिसको हम यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इंडिकेट कर रहे हैं। लिहाजा इनका एक रेगुलर पैटर्न बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, भारी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड, और लिक्विड में भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेट कर दिया है, जिसके नतीजे में हम ये कह रहे हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिवेलप स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which affect their physical properties. And what are these physical properties of liquid? Including diffusion, evaporation, vapor pressure, boiling point, even the melting point. All these properties are actually under the effect of intermolecular forces. And today we are going to discuss the next topic that is related to the liquid state, that is typical properties of liquid, and there is a huge role of intermolecular forces in this as well. Second topic of today is typical properties of liquid. In this first we are going to discuss that what are the main properties that are related to liquids. So first one is that liquids have, or they have, a definite volume but do not have definite shape, or fixed shape you can also write, fixed shape. So first of all क्या है ये प्रॉपर्टी? दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब कि इनका एक ख़ास वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इनकी एक प्रॉपर या डेफिनेट या रेगुलर या फिक्स शेप नहीं होती. दैट्स वाई इट नॉर्मली टेक्स, और एनी लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पुट. लिहाजा जब भी आप किसी भी लिक्विड को, जैसे पानी है, दूध है, किसी भी बर्तन में या कंटेनर में डालेंगे, वो उसी की शेप अज्यूम कर लेगा जिसमें आपने उसको रखा या डाला है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. आप ये भी लिख सकते हैं दे आर, और देयर मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर. So this will become the main properties, and due to which their molecular forces, these molecular forces which are called intermolecular forces, are strong but not as strong as compared to gases. So their intermolecular forces are stronger as compared to than gases. So you can compare it with gases as well. So these are some of the typical properties or general properties of the liquid. You can even write more properties after watching this. And the first property which I am going to discuss, that is the typical property, is
evaporation. So these are the lengthy questions of your part of your question. Evaporation. Evaporation. What is the meaning of evaporation? Evaporation का मतलब उर्दू में दिया जाता है बुखारात बनने का अमल. कैसा अमल है? बुखारात यानी वेपर. बुखारात से क्या मुराद है? बुखारात बनने का अमल इवेपोरेशन कहलाता है. इसमें होता क्या है? बुखारात का मतलब चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि वेपर्स बनना या इस तरह से जैसे लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना. तो गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर और एनी लिक्विड इज गिवन द नेम वेपर्स. So we will discuss the definition and their explanation later. Second topic of the day is typical properties of liquid, in which we are going to discuss first evaporation. Evaporation. So evaporation with definition first. So what is the definition of evaporation? You have to note down all the headings properly in your book, and then you have to write down on loose sheets. So what is this process about? The process in which the liquid phase changes into the gaseous phase or gas phase is called evaporation. Now evaporation is somewhat reverse process of condensation. And what is condensation or condensing process? Condensation is basically a process in which the reversal process or reversal reaction or reversible reaction will take place of the evaporation. That is the conversion of the gas molecules or gaseous phase into the liquid state again. So this is called condensation. So this is the reversal process. Evaporation में liquid जो है वो gas में convert हो रहे हैं, जबकि condensation में gas के जो molecules हैं वो liquid बना रहे हैं. तो एक दूसरे से ये opposite process है. Another important thing is you have to write down the explanation related to the evaporation. So second heading, explanation. What is explained in all scenario that you have to write down that it is an endothermic process. Which process? Evaporation is an endothermic process. Now what is an endothermic process? Endothermic means, endo means inside and thermic mean heat. Endo mean inside and thermic word comes from therm or thermal, and meaning of the thermic is heat. So the process in which the heat is absorbed inside the system is called endothermic process. And what type of process is evaporation? It is endothermic because in changing liquid into gas, or this change actually doesn't require any kind of, you can say, energy, but if the energy is provided to them, then what happens? Only the heat energy will get absorbed in the system, and in this way we can say that amount of heat is absorbed, amount of heat is present inside the system. Another important thing about that, you have to write down the next heading, example, and by the example you can clearly get this concept. When 1 mole of water, for example, I'm taking here the 1 mole of water in, first of all, which state? Liquid state. Here I'm writing L. L means liquid. So first of all, आपने क्या लिया? 1 mole water का लिया जो कि liquid state में है. By applying the process of evaporation, you are just providing it heat, and after heating, what you will find? You are finding that again water molecules are formed, but they are not exactly in the form of liquid. They are now in the form of G. G mean gaseous form. They are now becoming gas. So due to the conversion of this liquid state into gas, this process is given the name evaporation. Now one more thing about that, as we told that endothermic process is that in which the heat is absorbed inside the system. So this process also required that how much amount of energy that will be represented here. Del H is equals to 40.7 kilojoules per mole. So this much amount of heat energy is required for this conversion of liquid water into the gaseous water, that is water vapors. If we further explain the evaporation process, then we must know about the liquid state.
that, as I told you in the previous point, that in liquid states molecules are much closer to each other as compared to gas. They have some intermolecular spaces among them, and due to which their intermolecular forces are very strong because they are very close in contact with each other. So in the liquid states, as you know, the molecules are in continuous state of motion. They are not fixed to their position. Actually, they are moving at some distance as well, because or due to having intermolecular spaces among them. So they have kinetic energy, but all the molecules do not have the same kinetic energy. So every molecule of the liquid have kinetic energy, but this kinetic energy is not same for all. This kinetic energy, what is kinetic energy? क्या है kinetic energy? हरकत. Kinetic word comes from मोशन, और मोशन का उर्दू का मतलब होता है हरकत. तो ऐसी तवानाई जो मॉलिक्यूल्स में हरकत पैदा करे उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े बहुत फासले पर मौजूद हैं, लिहाजा इनके दरमियान खाली जगह होने की वजह से इनमें इतनी एक स्टेबिलिटी होती है कि ये अपने जगह से दूसरी जगह पर कुछ हद तक हरकत कर सकते हैं. यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ मॉलिक्यूल्स में कम और कुछ में ज़्यादा होती है. अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इस काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड किया गया है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ज़्यादा और कुछ में कम होती है. The majority of the molecules have average kinetic energy and few have more than average kinetic energy. यानी हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ में उससे कम होती है और कुछ में एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो इन 3 कैटेगरी की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाने वाली काइनेटिक एनर्जी को हमने बेस बनाया है. किसके लिए? द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी overcome the attractive forces among the molecules, and finally these molecules escape from the surface, and this whole phenomena is called evaporation. अब इसको समझने के लिए सपोज कि मैंने एक बीकर ले लिया है, एक ग्लास बीकर है, और ग्लास बीकर के अंदर मैं ले रही हूँ लिक्विड वाटर. इसके अंदर मैंने पानी ले लिया है. सपोज कि ये लिक्विड वाटर है. अब इस लिक्विड वाटर को मैं क्या करूँगी बेटा कि इस लिक्विड वाटर को मैं हीट अप कर रही हूँ बाय यूजिंग माय हीट सोर्स और बंसन बर्नर. ये मैंने बंसन बर्नर ऑन कर दिया है, फ्लेम ऑन है, और इसके बाद हमने इसको ऐसे करेक्शन दिखा दिया. तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ बंसन बर्नर. बर्नर भी इसको कह सकते हैं. फुल नेम इज़ बंसन बर्नर बिकॉज द नेम इज़ given to this burner is Bunsen due to the scientist who was first discovered it. Oh, okay. So at the surface you can see ये इसकी surface है जिस पर molecules मौजूद हैं. अब हमें पता है कि जहाँ से heat इसको provide हो रही है वो ये जगह है. तो यहाँ के molecules क्या कर रहे हैं? यहाँ के molecules सबसे पहले heat up होंगे. heat up होने के बाद ये molecules जो कि वार्म हो रहे हैं, वार्म होने के बाद ही ऊपर की तरफ मूव करेंगे. ऊपर से जो है मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और इस तरह एक सर्कुलेटिंग स्ट्रीम सेटअप हो जाएगी. यानी एक तरीके से इनके अंदर कन्वेक्शन प्रोड्यूस होगी, और इस कन्वेक्शन के नतीजे में पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाएगा. फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जो वार्म वाटर होगा, जो कि वो लेस डेंस होगा एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर. तो वो सरफेस के ऊपर से, यानी यहाँ पर जहाँ पर पानी की बिल्कुल टॉप सरफेस है, वहाँ से वो वाटर वेपर्स की शक्ल में वो गर्म पानी आहिस्ता आहिस्ता बीकर से स्केप करेगा, निकलना शुरू होगा. बट वी कांट सी दोज मॉलिक्यूल्स जो कि निकल रहे होंगे. यानी वो मॉलिक्यूल्स हमें आंखों से नज़र नहीं आएंगे. एक्चुअली वो क्या हैं? वो पानी के वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स जिन्हें हम कहते हैं. आबी बुखारात उर्दू में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. So why this happens? Because molecules have more than average kinetic energy. वो मॉलिक्यूल जो कि सरफेस को छोड़कर बीकर से बाहर वेपर्स की शक्ल में निकल रहे हैं, उनमें ऐसा अमल क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल्स जो कि बीकर के अंदर मौजूद हैं उनसे कहीं ज़्यादा है. सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. और जहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, एरो अबव है तो इंक्रीज़ है, एरो डाउन है तो
डिक्रीज को शो कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो एयर में जा रहे हैं। और ये क्यों है, क्योंकि इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या कर रही है, यानी बहुत ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर हावी हो चुकी है या उनको कम कर दिया है जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को एक जगह पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर बाइंड करके रखा हुआ है। लिहाजा अब क्या हुआ कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं जो कि मौजूद थी सरफेस पे, वो वीक होना शुरू हो गई, कमज़ोर होना शुरू हो गई। लिहाजा वो टूटी और टूटने के बाद उन्होंने उस वाटर को रिलीज़ करना शुरू कर दिया और वो वाटर जो है वो गैस की फॉर्म में, जिसको हम गैस और वेपर्स कह रहे हैं, उसकी फॉर्म में इवेपरेट होना यानी रिलीज होना, एस्केप होना शुरू हो गया। इस एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो कि आपके इस वक्त लिक्विड से निकल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ इवेपोरेशन। That we have seen finally that evaporation takes place in liquid, so this property is also related to the liquid. So properties of evaporation में first हम पढ़ने जा रहे हैं properties of evaporation के हवाले से, that evaporation is a cooling process. So this is the property of evaporation, that it is a cooling process. Cooling process. So give this heading next. And the next property will be the evaporation is continuous process as well. So evaporation को एक ठंडा करने वाला अमल कहा जाता है. Why? Because when the high kinetic energy of molecules vaporize, the temperature of the remaining molecule falls down. To compensate this deficiency of energy, the molecules of liquid absorb energy from the surrounding. As a result, the temperature of surrounding decreases and we feel cooling. क्योंकि होता ये है कि जब हम देख रहे होते हैं कि एक बीकर के अंदर जब हमने पूरी इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको समझाया, तो हमने क्या देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो सरफेस से क्या हुए, स्केप करना शुरू हो गए, निकलना शुरू हो गए और बाकायदा तौर पे उनकी वेपराइजेशन हो गई, यानी वो वेपर्स में तब्दील हो गए। इसकी वजह ये होती है कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस को छोड़कर वेपर्स में तब्दील होना शुरू होते हैं, जिसको हम वेपराइजेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। वेपराइजेशन यानी गैस में, लिक्विड का गैस में तब्दील होने का अमल हम वेपराइजेशन या वेपराइज होना भी कहते हैं। सो द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन। अब इससे क्या होता है कि दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग से अपने लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर होगी बात। ये एंडोथर्मिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हीटअप हो रहे थे वो वेपोराइज हो गए और बाकी मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो गए, वो कूल डाउन होना शुरू हो गए, ठंडा होना शुरू हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सराउंडिंग जो एयर है या सराउंडिंग जो इनकी इन्वायरमेंट थी उससे उन्होंने अपने लिए हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी, जिसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और वो सारी की सारी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, वो उस लिक्विड ने एब्जॉर्ब कर ली। जिसके बाद हम फील करते हैं कि अब बीकर को जब आप टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वो एक ठंडा सा एहसास आपको देता है, क्योंकि अब जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अब इस एनर्जी को जो सराउंडिंग में मौजूद है वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने इस तरह से भी ली जा सकती है कि जैसे आप बाथ लेते हैं, नॉर्मली आजकल समर का सीज़न है तो बाथ या नहाते हुए नहाने का मकसद ये होता है कि जब आप बहुत तेज़ शदीद गर्मी का शिकार होते हैं या बहुत तेज़ गर्मी आपको लग रही होती है, तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी भी हीटअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो आपका बहुत दिल चाहता है कि आप शावर के सामने या उसके नीचे खड़े हो जाएं और बस किसी तरह आप बाथ लें और आपको एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। तो बेसिकली ये भी एक इवेपोरेशन ही का अमल है, जिसके बाद आप ये फील करते हैं कि जब हम बाथ ले लेंगे तो उसके बाद हमारा जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से आपके बॉडी की इवेपोरेशन है, आपकी बॉडी की हीट एनर्जी है जो कि उस वक्त निकल रही होती है और आपको एक ठंडक का एहसास होता है और एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
cooling process. Now I'll give the simple demonstration by showing that how evaporation is a cooling process. इस बात को प्रूव करने के लिए कि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हम एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने कर रहे हैं जिसमें हमने एक जो है वो छोटा सा एक ग्लास लिया हुआ है और ग्लास का, और ये हमारे पास अल्कोहल है। और हमने क्या करना है कि सिंपली हमने अल्कोहल को थोड़ी सी अमाउंट में ले लेना है बहुत एहतियात से, क्योंकि केमिकल्स जो है वो आपने बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करने पड़ते हैं। तो कोशिश हमारी होगी कि हम ज़्यादा ना लें, ठीक है, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट भी जल्दी हो जाए और जो हमारे हैंड्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएं। तो अब मैं ये क्या करूँगी कि अपना हाथ मुझे मतलब आपने ऐसे रखना होगा और मैं इस हाथ पे अपने अल्कोहल का 1 या 2 ड्रॉप इस तरह से डाल लूँगी। अब ये देखें, जैसे ही ये ड्रॉप मेरे हाथ पे गिरा तो कुछ देर के बाद ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि क्या होगा। सबसे ज़्यादा एहसास जो मुझे हो रहा है कि आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप और 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल आई फील कोल्डनेस। मुझे फील हो रहा है कि जैसे किसी ने मेरे हाथ पर आइस क्यूब रख दिए हों। तो ये मेरी फीलिंग है। और अगर आप जो कि घर पे तो अवेलेबल नहीं होते अल्कोहल, लेकिन स्पिरिट घर पे होता है, अगर आप फील करें तो ये भी आपको एहसास होगा कि साथ साथ एक कोल्ड इफेक्ट होगा, एक कूल्ड इफेक्ट आपको फील होगा। और उसके साथ साथ थोड़ी देर में आप देखिएगा कि मेरे हाथ से सारा जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है कि इवेपोरेशन क्या है, कि अल्कोहल के अंदर ना सिर्फ ये कि इवेपोरेशन का अमल है, ये लिक्विड है, और साथ साथ आप देखें कि इस ग्लास के अंदर से भी वो पूरा का पूरा तकरीबन जितना मैंने लिया था आहिस्ता आहिस्ता वो भी इवेपोरेट हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ पूरा ड्राई हो जाएगा। तो सिंपल demonstration of evaporation that it doesn't give you the idea कि सिर्फ आप evaporate हो रहा है आपका अल्कोहल, बल्कि साथ साथ मुझे बिल्कुल फील हो रहा है कि मेरा हाथ इस वक्त ठंडा हो गया है। तो ये एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन थी। उम्मीद है कि इससे आपको समझ आ गया होगा कि evaporation कैसा अमल है। Second property of evaporation is that evaporation is a continuous process. So why it is a continuous process? Because it takes place at all temperature. So major thing which you have to note down that evaporation एक ऐसा अमल है जो हर किस्म के टेम्परेचर पर मुसलसल, continuous का मतलब मुसलसल जारी रहता है। एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी कह सकते हैं कि विच इज़ द मेजर फैक्टर इन केस ऑफ इवेपोरेशन, के ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये टर्म मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के हवाले से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो साथ साथ इवेपोरेशन का अमल भी बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप पानी को हीट अप कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी जितना इवेपोरेट हो रहा है उसके लिहाज से इवेपोरेशन ऑफ वाटर अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से अगर हम वो डबल कर दें, हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को हीट अप करें तो इवेपोरेशन भी डबल हो जाएगी। तो ये डबल होने का मतलब ही इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी उस लिहाज से बढ़ती चली जाएगी। रीज़न क्या है वाई इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? रीज़न इज द सेम, दैट it is due to the kinetic energy present in the any molecule or liquid molecules। स्पेशली हम बात करें लिक्विड की तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इतनी बढ़ जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेशन का अमल भी बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी विच इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी लिक्विड। Next subheading for evaporation is factors affecting evaporation. First of all, the names of those factors which affect. Number 1 is surface area, number 2 temperature, and number 3 intermolecular forces. In this regard, I will start the surface area first. Surface area, basically what does it mean? Evaporation, basically a surface phenomena. Greater the surface area, the greater will be the evaporation.
and the less surface area indicates the less evaporation. For this, you have to show an activity that sometimes the saucer is used if tea is to be cooled quickly. This is because evaporation from the larger surface area of saucer is more than that from the smaller surface area of a tea cup. So I'll show you by the simple demonstration of surface area. Now in this activity, I will show you that how evaporation is basically a surface phenomena. जैसा कि आपको एक चाय का कप नज़र आ रहा है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, इवन आई कांट टच इट. इवेपोरेशन के इस अमल को समझाने के लिए, इस फैक्टर को समझाने के लिए कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है, आप कैसे इसको सरफेस एरिया से रिलेट करेंगे. तो सरफेस एरिया का क्या मतलब है? सरफेस एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसका सरफेस देखिए कितना है. इसका सरफेस एरिया कितना है कि यहाँ पर इसका जो माउथ है उसको हम चेक कर रहे हैं कि इसका माउथ एज़ कम्पेयर टू द सॉसर हेयर किसका सरफेस एरिया, यानी एरिया किसका खुला है, ओपन किसका है. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टी जो हमारा कप है उसका सरफेस एरिया यानी ये ऊपर का माउथ बहुत छोटा है, जबकि जो हमारी इस वक्त आपको सॉसर नज़र आ रही है इसका माउथ बहुत बड़ा है. तो चाय अगर हम कप में पिए तो ये जल्दी ठंडी नहीं होगी. आजकल गर्मियों का मौसम है, आप जानते हैं. लिहाजा अगर हम चाय का इंतज़ार करें कि ये ठंडी होगी और हम पिएंगे तो ये बहुत मुश्किल है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको चाय को थोड़ा सा हम डाल रहे हैं सॉसर के अंदर. देखिए आप इसको फील कर रहे हैं कि काफ़ी सारा इसमें से धुआं सा भी निकल रहा है, स्टीम जो है वो निकल रही है इसकी. तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमने चाय के कप में से सॉसर में कुछ जो है वो टी जो है वो डाल ली है. अब हम चेक करेंगे कि किस में ज़्यादा बेहतर तरीके से चाय ठंडी हो जाएगी. तो हम चेक कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद कि चाय ज़्यादा ठंडी किस में होगी. तो ये हमें देखने से भी पता चल जाएगा कि चूँकि इसका सरफेस एरिया यानी माउथ खुला हुआ है, ओपन है ये, लिहाजा इवेपोरेशन बहुत तेज़ी के साथ जो है वो एक खुले बर्तन में होती है एज़ कम्पेयर टू जो तंग मुंह वाला बर्तन होता है उसमें. तो सरफेस एरिया इवेपोरेशन पे कैसे असरअंदाज होता है कि चाय के कप में चाय उतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, लिक्विड उतना जल्दी ठंडा नहीं होगा जितना आपके सॉसर में होगा. रीज़न क्या है कि जितना एरिया बड़ा होगा उतनी ही इवेपोरेशन यानी एक तरीके से वेपराइजेशन का अमल जल्दी होगा, और जितना आपका माउथ छोटा है, सरफेस एरिया कम है, उतना ही इवेपोरेशन का अमल कम होगा. आफ्टर 5 मिनट्स वेट हम अब चेक करते हैं कि हमारी जो सॉसर है उसमें चाय ठंडी है या हमारी कप की चाय ठंडी है. तो हाथ से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जब मैंने सॉसर को हाथ लगाया है तो जी काफ़ी हद तक मुझे ये ठंडी लग रही है, यानी ये पी जा सकती है. लेकिन जब मैं कप को हाथ लगा रही हूँ तो उफ़ ये बहुत ज़्यादा गर्म है. इसका मतलब है कि यहाँ से इतना जल्दी आपको एक सरफेस फिनोमेना या इवेपोरेशन नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर जो स्टीम थी चाय के अंदर, जो एक लिक्विड था वो इवेपोरेट इतना जल्दी नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि सारी वो जो गर्म एक हॉट स्टीम जो होती है चाय के अंदर वो इवेपोरेट हो गई है. लिहाजा अब ये चाय मैं पी सकती हूँ. इसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा. तो जब तक मैं चाय पीती हूँ आप वेट करें, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द इवेपोरेशन इज टेम्परेचर. So how does temperature affect evaporation? At high temperature, the rate of evaporation is high. So if the temperature will be increased, this indicates that rate of evaporation will also be increased. यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का अमल भी उस लिहाज से ज़्यादा होगा. रीज़न क्या होता है इसका कि दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विच इन टर्न इंक्रीज एंड ओवरकम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरकम? क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती चली जाएगी, वो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो ताकत जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड किए हुए उसको ओवरकम कर लेगी या कम कर देगी और या उस पर काबू पा लेगी. तो इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब मॉलिक्यूल्स के अंदर कम हो जाएंगे तो फौरी तौर पे ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इवेपोरेशन का अमल शुरू हो जाएगा. इसकी मिसाल समझने के लिए हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होगी जो कि हम अब परफॉर्म करेंगे. इस फैक्ट को समझने के लिए कि
टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इवेपोरेशन का अमल भी बढ़ता है। हमने यहाँ पर अपने 2 कंटेनर्स बना लिए, एक बीकर हमने लिया है और बीकर के अंदर हमने 2 इस तरह की टेस्ट ट्यूब रख दी हैं। एक के ऊपर हमने ब्लू टेप लगा दिया है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पानी हमने इसमें लिया है, लिक्विड वाटर लिया है, वो कोल्ड वाटर है, ठंडा बर्फ़ वाला पानी है। और दूसरा थोड़ा सा अगर हम इसको टच करके देखें तो बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए मैं फील कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको इवन मैं टेस्ट ट्यूब को टच करने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब करना ये होगा कि आपने थोड़ी देर के लिए अपनी कोल्ड वाटर वाली टेस्ट ट्यूब और हॉट वाटर टेस्ट ट्यूब को रखना है और थोड़ा वेट करना है। अप्रॉक्सीमेट आप इसमें 30 मिनट्स भी आप लगा सकते हैं, 20 मिनट भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन मैं आपको इतना वेट तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन जैसे ही मुझे अपने रिजल्ट्स मिलेंगे मैं आपको बताऊंगी कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल डाउन हुआ है। देन आई विल गिव यू द रीज़न फॉर दैट। सो ये आप देख लीजिएगा कि दोनों का लेवल इक्वल है। तो ये मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन वी विल ऑब्जर्व दिस, हमने क्या देखा कि फिलहाल लग तो ऐसे ही रहा है कि लेवल एक जैसा है, लेकिन चलिए हम ऐसे दिखा देते हैं आपको। ये हमारी कोल्ड वाटर टेस्ट ट्यूब है और ये हमारी हॉट वाटर टेस्ट ट्यूब है। तो लेवल थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि हॉट वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी का लेवल है वो डाउन हो गया है, जबकि जो आपकी कोल्ड वाटर है उसमें आपका लेवल तकरीबन उतना ही रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर किसी लिक्विड का बढ़ाएंगे उससे इवेपोरेशन भी जल्दी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि ऊपर माउथ जो है देखें दोनों का सेम है, छोटा है। तो सरफेस एरिया जितना छोटा होगा उतनी ही इवेपोरेशन में डिफ़िकल्टी होगी। अब यहाँ पर ऐसा प्रोसेस हमें जैसे कि नज़र आ रहा है कि इवेपोरेशन जो है रैपिडली यहाँ पर हो रही है हॉट वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में, जबकि कोल्ड वाटर टेस्ट ट्यूब में इवेपोरेशन का अमल जल्दी नहीं होता या बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई है और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से इन्होंने जो मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ओवरकम किया है, कम कर दिया है, और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स की शक्ल में इवेपोरेट होना शुरू हो गए और उसके बाद उन्होंने ये लेवल जो है वो यहाँ पर कम कर दिया अपना। तो ज़्यादातर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेशन के नतीजे में टेस्ट ट्यूब से एस्केप कर चुके हैं। तो ये एक रीज़न है जो आपके सामने है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोल्ड वाटर जो है वो इतना इवेपोरेट नहीं हुआ जितना कि हॉट वाटर इवेपोरेट हुआ है। Third factor which affect the evaporation is intermolecular forces. How does intermolecular forces affect the evaporation? As we know that in liquid molecules, the molecules are closely packed to each other, but not as we have seen in the solid. यानी आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला होता है वो मीडियम होता है, ना गैस की तरह बहुत ज़्यादा और ना सॉलिड की तरह बहुत कम। तो इस ताल्लुक़ को, इस रिलेशनशिप को अगर हम रिलेट करें किसके साथ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, तो जितना दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप कम होता है उतना ही उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, एंड मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासला भी उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोजली अटैच होते हैं। इनको एक दूसरे से हटाना, रिमूव करना या सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा इसके लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि अगर जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी, वीक होंगी, उतनी ही इवेपोरेशन का अमल भी ज़्यादा होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान कम होती चली जाएंगी, कमज़ोर होती चली जाएंगी, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट जल्दी हो जाएंगे। लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ही इवेपोरेशन का अमल जो है वो डिक्रीज़ होगा, कम होगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इतने मजबूती से बाइंड हुए हुए, जुड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम इस पर कोई प्रेशर या कोई और चीज़ अप्लाई करें तो भी ये वहाँ से गैस जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप नहीं करेंगे।
इसको समझने के लिए भी एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन हम करते हैं ताकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो एक इफेक्ट है इवेपोरेशन पे उसको समझा जा सके। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी यानी इवेपोरेशन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको जानने के लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये सिंपल एक्टिविटी कुछ इस तरह की है कि इसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब अगेन ले लिए। इन 2 टेस्ट ट्यूब को हमने एज अ वाटर यानी इसमें हम वाटर लेंगे और इसमें हम अपना अल्कोहल लेंगे। तो ये 2 टेस्ट ट्यूब, इसको मार्क हमने इसी तरह कर दिया है कि ये ब्लू एक टेप हमने इस पर लगा दिया है जिसमें वाटर हम लेंगे। हम इस पर किसी परमानेंट मार्कर से लिख भी सकते हैं कि वाटर एंड अल्कोहल। भारत ये आपके लिए फ़िलहाल छोटा सा एक सेटअप हमने लगाया है। इसके बाद हम लेंगे ड्रॉपर ताकि हमें इक्वल अमाउंट में अल्कोहल और वाटर हम ले सकें। इसके अलावा एक दूसरा ड्रॉपर भी हम यहाँ रखेंगे ताकि अलग अलग ड्रॉपर से हम ये केमिकल्स यानी वाटर और अल्कोहल जो है वो अपनी टेस्ट ट्यूब में ले सकें। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यानी जो केमिकल्स हमें चाहिए वो वाटर है H2O, और सेकेंडली हमारे पास अल्कोहल है। सिंपली अल्कोहल को हम जो है वो 2 तरह से लेते हैं, एक इथाइल अल्कोहल होता है और एक मिथाइल अल्कोहल होता है। तो हमने जो है वो इस वक्त इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है इसका वो सिंपली ये है कि आपने पहले एक ड्रॉपर की मदद से पहले ड्रॉपर को आप इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे और उसके बाद उसको वाटर के अंदर इंसर्ट करेंगे। क्या होगा कि जितना वाटर का लेवल जो है वो इसमें आएगा आपने नोट कर लेना कि इतना ही आपने अल्कोहल भी लेना है। फिर हमने इस टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने अपने पानी को जो है वो ऐड करना है वो हमने ले लेना है और आराम से इसको प्रेस कर देना है ताकि सारा पानी इसके अंदर डल सके। और अब हमने ये देख लीजिए कि पानी इसमें आ गया। अब हमने एक दूसरा ड्रॉपर लेना है और उस दूसरे ड्रॉपर से हमने फिर अल्कोहल की बॉटल से जो है इसी तरीके से वही आपने अप्लाई करना है, इस तरह प्रेस करके अंदर लेके जाए। और अल्कोहल की पूरी स्मेल सी जो है उस वक्त रूम में फैल चुकी है। और यहाँ पर तकरीबन देखिए हमने इतना ही लेवल जो है वो ले लिया किसका। एक दफ़ा फिर प्रेस कर देते हैं ताकि लेवल इक्वल हो जाए। जी, ये लेवल हमारा अब तकरीबन इक्वल है। अब हमने इसको कैप कर देना है क्योंकि ये स्पिरिट की तरह है और आपको पता है इवेपोरेट हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, फौरी तौर पे हमने इसको लेके और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से पोर कर लेना है अच्छी तरीके से ताकि कोई ड्रॉप रह ना जाए। आफ्टर दिस हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे कि थोड़ी देर के बाद हम इसका की एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम देख रहे हैं कि इस वक्त दोनों का लेवल बराबर है। ठीक है, दोनों का लेवल हम इस वक्त यानी वाटर का और अल्कोहल का बराबर है। थोड़ी देर के बाद हम इसके इफ़ेक्ट्स का यानी जायज़ा लेंगे कि क्या इसमें जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही हैं। सो वेट फॉर अ वाइल। Now we'll check the level of water and alcohol in the test tube. As we can see, ये हमारा जो है वो टेस्ट ट्यूब वाटर वाला था और ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो अल्कोहल वाली है। और दोनों का लेवल अगर हम दिखाएं आपको तो ध्यान से देखिएगा कि किस टेस्ट ट्यूब में लेवल कम हुआ है लिक्विड का। तो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है और थोड़ा सा मैं मूव करके भी दिखाती हूँ कि वाटर वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें लेवल इतना कम नहीं हुआ जितना कम हो गया आपका अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब में। जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों में फ्लाइंग एबिलिटी है, लेकिन वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन अल्कोहल। लिहाजा इवेपोरेशन का अमल उस वाटर या उस अल्कोहल वाली जो भी आपने जो लिक्विड लिया है किस में ज़्यादा होना चाहिए। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी उनमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और जहाँ स्ट्रॉन्ग होंगी वहाँ आपका जो इवेपोरेशन का अमल है वो स्लो होगा लेकिन बहुत स्लो, यानी बिल्कुल मिनिस्कस नज़र ना आने वाली कैफियत होगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जब मैं ये प्रोसेस देख रही थी तो उसमें मैंने फ़ील किया कि बाकायदा तौर पे टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो सरफेस है, अंदर की जो वॉल है, इसमें छोटे छोटे मुझे ड्रॉपलेट्स भी नज़र आ रहे हैं अल्कोहल के, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि मुसलसल जो है वो इवेपोरेशन का अमल हुआ है। शायद आपको नज़र आ रहे हो या ना आ रहे हो, देखिएगा ध्यान से।
देखिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अंदर हैं जो इंडिकेट करें कि आहिस्ता आहिस्ता ये इवेपोरेशन जो है वो हो रही है और वाटर वेपर्स पूरे वॉल के अतराफ में मौजूद हैं। और सेकेंडली जब मैंने इसको टच किया टेस्ट ट्यूब को तो मुझे एक अगेन कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सो दिस इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज़ वीक इन अल्कोहल एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन वाटर।